Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Analytical chemistry 2 lab 316252 for base third year and MSc student, and we are going to discuss our second lab, that is the determination of acetic acid and hydrochloric acid in a mixture, and how we can determine the acetic acid and a hydrochloric acid in a mixture by the potentiometric titration, and more specifically using the pH meter. So it is the object of the second lab, that is we need to determine the concentration of acetic acid and hydrochloric acid in a mixture, and this mixture contain a weak acid, that is the acetic acid, and a strong acid, that is hydrochloric acid. So if we use the classical method, like we determine it by the pH metric, like we determine it by the using phenolphthalein indicator or the methyl indicator, so we cannot determine individual concentration of the acetic acid and the hydrochloric acid. So if we want to determine the individual concentration of a strong and weak acid in a mixture, so we need to use a pH meter. So pH meter, the pH metric titration make us able to determine individual concentration in a mixture. So what is the theory behind it? So if we have discussed about the acetic acid, that acetic acid do not dissociate completely because it is a weak acid. There is an equilibrium established between the dissociated and undissociated part, like this. You can see it. We have the acetic acid in the presence of water. What happened? It produces a hydrogen ion, and hydrogen ion in the presence of the water, that is overall we can say hydronium ion. So acetic acid donate a proton and convert into the acetate ion. So this is an equilibrium in the normal condition where is an equilibrium is present. But if we add hydrochloric acid in a water, if we add, what happened? All the hydrochloric acid convert into the proton and chloride ion. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, तो जो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोनियम आयन की आ रही होती है, दैट इज अ ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द HCl. जब हमने HCl को वाटर के अंदर ऐड किया तो वहां पर HCl इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड द क्लोराइड आयन. बट वीक एसिड के अंदर क्या है, वीक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, जब हमने उसको वाटर में ऐड किया तो उसने कुछ फ्रैक्शन, दैट इज अ स्मॉल पार्ट जो है वो हाइड्रोजन आयन और एसिटेट आयन में कन्वर्ट होगा, एंड बाकी जो एसिटिक एसिड है वो इन द मॉलिक्यूलर स्टेट इन द एसिटिक एसिड की फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड. बट अगर हमने क्या किया, मिक्सचर लिया जिसके अंदर एसिटिक एसिड भी मौजूद है और HCl भी मौजूद है, सो व्हाट हैपेंड, HCl तो क्या किया, HCl ने completely dissociate हो गया. Now we have the weak acid. Weak acid have its own equilibrium. Weak acid ने अपना equilibrium establish किया हुआ है. अब जब हमने HCl ऐड किया है उसके अंदर, या HCl और एसिटिक एसिड एक ही सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो जो HCl के प्रोटॉन है, दैट इज हाइड्रोजन आयन जो हमारे पास हैं, वो HCl की वजह से हाई इन अमाउंट मौजूद हैं. सो हाई इन अमाउंट HCl की जो प्रोटॉन है वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द एसिटिक एसिड, उस इक्विलिब्रियम को लेफ्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट कर सकता है. एक तो वीक एसिड है, वीक एसिड पहले ही स्मॉल फ्रैक्शन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है. अब अकॉर्डिंग टू ली शेटलर प्रिंसिपल कि अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी भी एक इंडिविजुअल हम रिएक्टेंट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन जो है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज करता है या शिफ्ट करता है. तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, ये रिएक्शन हमारा बैकवर्ड प्रोसीड करेगा. दैट मीन्स कि जो हमारा एसिटिक एसिड पहले इन द एब्सेंस ऑफ द HCl डिसोसिएटेड था, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वो एसिटिक एसिड और ज़्यादा
कम या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डिसोसिएट होगा और ज़्यादा जो एसिटिक एसिड है वो कन्फाइंड या मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। तो जब हम इसको टाइट्रेट करेंगे तो टाइट्रेशन के लिए जो हमारे पास पीएच आएगी वो पीएच इंडिविजुअली, पीएच बेसिकली नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इस वीक एसिड की वजह से बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, और ये HCl की वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनिशियली हाइड्रोजन आयन की ये वाले जो हाइड्रोजन आयन है इनकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मौजूद होगी और जब हम पीएच इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट से इस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वो मोस्टली डिपेंड कर रही होगी इन हाइड्रोजन आयन के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन हमारे एसिटिक एसिड से और जो हाइड्रोजन आयन HCl से आ रहे हैं इन दोनों का सबमिशन करते हुए इन दोनों की कंसंट्रेशन ओवरऑल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास पीएच आती है, बट क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन के लिए डिसोसिएट हो रहा था तो मोस्टली जो डिपेंडेंट होता है या मेजर कंपोनेंट अगर हम कहें जो हाइड्रोजन आयन का है वो हमारे पास HCl से आ रहा है। अब हमने क्या किया, हमने उसके अंदर पीएच इलेक्ट्रोड को डिप किया, पीएच इलेक्ट्रोड पीएच उसकी क्योंकि हाई कंसंट्रेशन HCl की मौजूद है, हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मौजूद है, पीएच बहुत लो आएगी। अब हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ने क्या किया है अपने प्रोटॉन पहले से डोनेट कर दिए। जब हम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर तो वो पहले किससे रिएक्ट करेगा, जो प्रोटॉन अवेलेबल है, जो प्रोटॉन पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो इन प्रोटॉन को हाइड्रोक्साइड आयन हम ऐड करेंगे, हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कर लेगा, सॉल्ट एंड वाटर दैट इज NaCl एंड H2O हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जब तक ये HCl के प्रोटॉन मौजूद हैं यही प्रोटॉन जो है वो रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इन प्रोटॉन के रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो हमारी इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो गई थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगेगी। ड्यू टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन हमारा क्या होगा, जो एसिड था एसिड की जैसे लो पीएच आ रही थी, जब ये सारा का सारा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे पास जो पीएच है, अब ये सारे HCl के प्रोटॉन जो है हमारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं तो उस वक्त हमारे पास ये आएगा पीएच में स्मॉल इंक्रीज आएगा, ठीक है। वैसे भी हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही थी लेकिन जैसे ही सारे के सारे प्रोटॉन हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो थोड़ा सा शार्पली एक इंक्रीज आता है। वो शार्पली इंक्रीज किस वजह से आ रहा है कि अब HCl हमारे सिस्टम के अंदर से खत्म हो चुका। अब जब HCl के प्रोटॉन खत्म हो जाएंगे तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द HCl प्रोटॉन, जब HCl के प्रोटॉन नहीं है तो जो इसका अपना ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था वो अपना ओरिजिनल इक्विलिब्रियम दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब उस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में इसने कुछ प्रोटॉन क्या किए हैं, डिसोसिएट किए हैं। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं वो इन प्रोटॉन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इन प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब क्या हो रहा है, दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन। जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो तो हमारे पास क्या होगा, जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाएगा जैसे जैसे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। जब सारे प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दैट मीन्स ये तमाम का तमाम एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो चुका है इनटू द एसीटेट आयन। नाउ द रिएक्शन बोथ एसिड हैज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। अब जब हम मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे वो क्या करेगी, वो पीएच को एकदम से इंक्रीज कर देगी। सो ये दो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास पीएच में थोड़ा सा शार्प चेंज आ रहा है, these two points will indicate or will be used for the determination of the HCl concentration and the acetic acid concentration, ठीक है। so whatever I have said कि मिक्सचर है सोडियम एसिटिक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से प्रोटॉन वहाँ पे हायर क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं और वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड जो है हमारा रिएक्ट नहीं करता जब चाहे हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें। बट इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है उस वक्त फिर क्या करेगा, वो वीक एसिड रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा in the absence of sodium, absence of strong acid. मैम Yes.
मैम अपने सेकंड जो HCl वाला रिएक्शन है उसमें आपने ये बताया कि वहाँ pH इंक्रीज होगी। जब HCl न्यूट्रलाइज होगा, when HCl will neutralize then pH will increase। ठीक है, इनिशियली क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है, उसके अंदर HCl मौजूद है। अब वहां पर प्रोटॉन जो है डोमिनेट कर रहे हैं ड्यू टू द HCl। एंड जब हमने उस सिस्टम के अंदर जो बेस ऐड करना स्टार्ट की, तो बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड रिएक्ट करेगा। इन द प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड रिएक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो चुका होता है। ठीक है, इसका ग्राफ भी हम अभी कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब जब भी प्रैक्टिकल करना है, इट इज मस्ट एंड नेसेसरी दैट वी हैव टू डू द स्टैंडर्डाइजेशन। एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सबसे पहला काम जो आता है वो है सॉल्यूशन प्रिपरेशन का। एंड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट इट कि सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए हमने अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि कितने ml के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाना है, उसका अपना मॉलिक्यूलर मास क्या है, और कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। इससे हम अमाउंट निकालते हैं एंड देन फिर अमाउंट से हम मोलैरिटी वापस से कैलकुलेट करते हैं कि जो अमाउंट एग्जैक्टली अगर आया था हमने वही लिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने से डिफरेंट अमाउंट ले लिया है, उसमें कुछ डिजिट्स में डिफरेंस आ रहा है, तो मोर एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट कंसंट्रेशन के लिए हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ऑब्जर्वेशन जो है वो वही होंगी, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इस टाइट्रेशन के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए स्टैंडर्ड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड को फिर हम लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करेंगे यूजिंग द फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। एंड फिनोप्थिलीन इंडिकेटर से जो हमारे पास 3 कॉनकॉर्डेंट रीडिंग आएंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑब्जर्वेशन कॉलम के रिस्पेक्ट आ जाएंगी, और उसी के रिस्पेक्ट से फिर कैलकुलेशन होगी। तो सॉल्यूशन प्रिपरेशन को जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम रिपोर्ट नहीं करते सॉल्यूशन प्रिपरेशन, इट इज अंडरस्टूड कि हमने सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की हेडिंग के साथ जो ऑब्जर्वेशन हमने ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन के लिए ली थी, तो ऑब्जर्वेशन में स्टैंडर्डाइजेशन की हेडिंग के साथ आपने वो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करनी होती है। और जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में पहले आपने मोलैरिटी रिपोर्ट करनी होती है, एंड देन जो कंसंट्रेशन डिटरमाइन किया आपने जिस तरीके से, वो कंसंट्रेशन स्टैंडर्डाइजेशन की हेडिंग के अंदर वो भी आपने रिपोर्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा एस्टिमेशन ऑफ सैंपल, या फिर आप कह सकते हैं सैंपल असेसमेंट, या आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल, इट इज अप टू यू। ठीक है, सैंपल एस्टिमेशन या सैंपल असेसमेंट के अंदर फिर पहले आपके पास क्या आएंगी, ऑब्जर्वेशन। सो अब आपने जब सैंपल लिया है, अब सैंपल में क्या था, वो सिंपल ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, वहां पर एक एसिटिक एसिड एंड HCl का मिक्सचर है। उस सैंपल का कितना वॉल्यूम आपने लिया, जो एसिड मिक्सचर का सैंपल था, वो आपने रिपोर्ट करना होता है जब आप अब क्या कर रहे हैं, किस हेडिंग के अंदर आ रहा है, ऑब्जर्वेशन की किस हेडिंग के अंदर आ रहा है, इन द एस्टिमेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, क्योंकि हम इसको एज अ पावर पॉइंट पे देख रहे हैं तो हमें इसकी हेडिंग मैंने डिफरेंट तरीके से लिखी है। अदरवाइज एक ऑब्जर्वेशन की हेडिंग के अंदर पहले स्टैंडर्डाइजेशन आ गई, उसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी वो आ गई, एंड देन आपने क्या किया, एस्टिमेशन ऑफ सैंपल के अंदर फिर आपके पास वो आएगी हेडिंग दैट इज कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपको जब ये वाली ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो इस वक्त आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन नोन है, कहाँ से आई है, वो स्टैंडर्डाइजेशन से आई है। ठीक है, और सैंपल का जो वॉल्यूम आपने लिया है एसिड का, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, बिकॉज इट इज वेरी डिपेंडेंट। जो कंसंट्रेशन जो हम डिटरमाइन करेंगे वो इन दो चीज़ों को यूज करते हुए करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों का एग्जैक्टली नोन होना, क्योंकि हर दफ़ा आप प्रैक्टिकल के अंदर यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए नोन होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्जर्वेशन जब आप लेंगे तो क्या करेंगे, आपने क्या किया है, सैंपल 20 ml लिया, उसके अंदर पीएच इलेक्ट्रोड डाला और उसके अंदर ब्यूरिड में से 1 ml करके आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते गए। कितनी कंसंट्रेशन थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 0.1 मोलर। ठीक है, और उसमें की आप पीएच नोट करते गए। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जर्वेशन कॉलम बन जाता है। वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का
have not given here the unit, we have to mention it कि यूनिट भी हमें साथ में लिखनी होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम है वो पर ml है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ हम ml भी लिखेंगे। pH को हमें, तो pH की कोई यूनिट नहीं होती तो pH को हमें नहीं लिखना, ठीक है, यूनिट नहीं लिखनी pH की। और ये यहाँ पर भी मोर एक्यूरेटली अगर हम इसको कह दें कि ये 0.10 है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट कंसंट्रेशन एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमें लिखनी चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंड, जब हमारे पास ये pH आ गई, दैट इज 0 के ऊपर हमने इनिशियली pH ली, दैट इज आ रही है 1.3। जब हमने 1 ml एक्चुअली हमने 1.0 ml ऐड किया है इसके अंदर फ्रॉम द ब्यूरिट, तो हमारे पास क्या आया है 1.37, pH इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है विद द एडिशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस बिकॉज आई वाज यूजिंग द टेबल, तो इस टेबल में एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये पॉइंट के बाद भी हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। सो 1.0, 2.0, 3.0, क्योंकि एग्जैक्टली जो वॉल्यूम हमने ट्रांसफर किया है वो हमें मेंशन करना है। 1, 2 एंड 3 आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू ट्रांसफर द वॉल्यूम, ठीक है। सो इट शुड बी 1.0, 1.2.0 एंड 3.0। सो क्या हो रहा है, जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होती जा रही है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन होती जा रही है स्ट्रॉन्ग एसिड की, एंड पीएच में हमारे पास ग्रेजुअली चेंज आता जा रहा है, ठीक है। ग्रेजुअली दैट मीन्स 1.37 से 1.44, 1.5 टू 1.60, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हमारे पास आता जा रहा है। एंड जब हमारे पास कम्प्लीटली ये एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो एकदम से हमारे पास थोड़ा सा शार्प चेंज आएगा, ठीक है। pH 2 से pH 4 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट pH बढ़ गई है, जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास एकदम से थोड़ा सा शार्प चेंज आया है। एंड अगेन अगर हम इसको प्लॉट करते जाएं आगे कंटिन्यूएशन के अंदर, तो हमारी pH अगेन अब क्या होगा, अब वीक एसिड जो है हमारा क्या कर रहा है, वो न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। जब वीक एसिड भी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी, अगेन हमारे पास पीएच में एकदम से शार्प चेंज आएगा। यहाँ पे एसिडिक पीएच, लोअर पीएच आ रही है ड्यू टू द HCl। जब वीक एसिड की पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच से थोड़ी सी लो होती है, क्योंकि एसिड जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता, तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमारे वीक एसिड्स के अंदर हमेशा बहुत लो होती है, दैट इज वाई उसकी पीएच थोड़ी सी हमारे पास स्लाइटली हायर आती है। फॉर ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसका अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, एंड एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लास्ट टाइम हमने मालूम किया था, तो वो हमारे इसी रीजन के अंदर आ रहा था, दैट इज बेसिकली इसका जो pKa होता है वो 4.76 होता है, ठीक है। तो इसी रीजन के अंदर हमारे पास pH आ रही होगी। फिर जब एसिटिक एसिड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर गया है, ठीक है। तो उस सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो ड्यू टू द हाइड्रोक्साइड आयन एकदम से उसकी पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड वो हमारे पास शो हो जाएगी। तो जब जैसे ही हमारे पास दूसरा शार्प चेंज आए, दैट इज के बेसिक रीजन आ जाए 7 से अब आएगा, वो 10, 12, 13 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बेसिक रीजन हमारे पास आ गया, तो उसके बाद हमने 2 से 3 रीडिंग लेने के बाद अपना प्रैक्टिकल खत्म करना है। नाउ ये इस तरीके का हमारे पास आएगा, ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ के अंदर हम कभी कभी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 शार्प चेंजेस नजर आ रहे हैं, 1 एंड दिस वन इज 2। शार्प चेंज के पीएच में पहले तो हम इक्वल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हर दफा हमने 1 ml का इंक्रीमेंट किया है, तो इक्वल इंक्रीमेंट से मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल चेंज आ रहा होता है इनटू द पीएच, ठीक है। ग्रेजुअली 1 ml ऐड कर रहे हैं, तो 1 ml के रिस्पेक्ट से उतना ही हमारा एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है और थोड़ी थोड़ी पीएच में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 शार्प चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे पीएच में थोड़ा सा शार्पली चेंज आ रहा है, वो शार्प चेंजेस जो है हमारे 2 इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाते हैं। एक फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वीक एसिड। नाउ you can determine the equivalence point by the, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनको थोड़ा सा नीचे प्लॉट करें, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से,
और वॉल्यूम फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट का डिटरमाइन कर सकते हैं। यूजिंग द सर्कल फिटिंग मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह पे सर्कल अप्लाई किया। सम टाइम जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज के रिस्पेक्ट से आया है। समटाइम जब हम प्रैक्टिकल वैल्यूज कर रहे होते हैं या प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इतना आसानी से इतना शार्प चेंज शो नहीं हो रहा होता। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चेंज कहाँ आ रहा है, शार्प चेंज किस तरीके से? तो उसके लिए फिर हम डेरिवेटिव प्लॉट बनाते हैं ना। ये जो बाकी की 3 कॉलम आप देख रहे हैं ये डेरिवेटिव प्लॉट के लिए हैं। सो डेरिवेटिव प्लॉट बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो हमने, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम एंड पीएच का ग्राफ कंसीडर किया था, वॉल्यूम एंड पीएच का ग्राफ आज भी आप देख सकते हैं। तो अब डेरिवेटिव को हमने सीखना है, तो डेरिवेटिव के लिए क्या है, आपने चेंज इन पीएच निकालना है। अब डी पीएच या हम इसको डेल्टा पीएच से भी समटाइम डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। चेंज इन पीएच, कितना चेंज आया है पीएच के अंदर, दैट इज ये जो हमारी पीएच थी 1.37 में से माइनस कर दिया आपने 1.30 को, because I have done it on the Excel, so there were different significant figures, ठीक है। 1.37 के साथ इसमें थर्ड डिजिट भी मौजूद था यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी थर्ड डिजिट भी मौजूद था, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा 0.67 है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली नजर आएगा कि यहाँ पर 0.07 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक सिंपल सा इशू है। सो what you can see difference, जो हमारी सेकंड रीडिंग है दैट इज द फाइनल, फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस करते जाएं, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज डेल्टा पीएच। नाउ सेकंड रीडिंग के लिए ये हमारे पास क्या हो गई, जो सेकंड रीडिंग है ये फाइनल हो गई और ये इनिशियल हो गई, ठीक है। दैट इज ये हमारे पास क्या आया, 1.44 में से 1.37 को माइनस कर दिया 0.071, ठीक है। तो ये हर सेकंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करते जाएं आप, और आपके पास ये चेंज इन पीएच आता जाएगा। हर वैल्यू में से आपने सेकंड फर्स्ट रीडिंग को माइनस करना है, वी हैव द चेंज इन पीएच। तो डेल्टा पीएच आपने कैलकुलेट करनी है। डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम के लिए आपने वॉल्यूम को कंसीडर करना है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, सिर्फ चेंज नहीं लेते। आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।